the person who is a good researcher is always be a good teacher. नेक्स्ट ईयर प्राइस बढ़ जाता है, तेरा परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाता है, तो क्या किया तूने? मनी अर्न्स फॉर देम, वेयर एज वी अर्न्स द मनी. यही एक फर्क है, बिकॉज वी आर वेरी गुड इन सेविंग. वो जेनेटिक है अपना, बट वी आर वर्स्ट इन इन्वेस्टमेंट. सब गांव वाले, मतलब दूसरे गांव वाले आके एक ट्रांजिस्टर, एक वॉल्यूम, सब ऐसे करके सुन रहे थे. A good idea will always get capital from somewhere. Capital की जरूरत नहीं होती बिजनेस करने की. Hello everyone. Today it's a special episode. It's for the Teachers' Day, and we have with us Dr. Nishikant Jha, who is Vice Principal of Thakur College and HOD Accounting and Finance. There is a laundry list of his achievements and what he is actually. Rather than I narrating it and even sharing a glimpse, I thought it's better we heard it from him, and moreover try to understand a very interesting personality who wants to teach but even self-learn. And when you read about his biodata or about him, it just doesn't involve him about being as a faculty or as somebody who handles a lot of things at Thakur College, but it involves a lot of research and patterns that he has, for which he's worked hard himself. So welcome to Ek Story, Dr. Jha. When Ashish was sharing, my colleague, about why don't we call sir, and then he showed your CV and the elaborate profile and then a website also that you have. I was like, it's going to be very overwhelming for me to sit here and talk to you. So rather this not be like a podcast which is more Q&A but more conversation. So I'll be at ease more than you. But something about you. Let's start with that. I mean, it's so much to know and it's such a laundry list of things. So over to you. Thank you, sir. And I'm also thankful to Ashish for calling me here for this podcast. And I'm dedicating this podcast to all my teachers, friends, faculty, because you must be knowing any career, whatever it may be, it starts from teaching. If teacher is not there, no profession can generate. So dedicated to all of them. At the same time, I want to dedicate this to learners also. Because today whatever I am, it is because of my learners. If they would not have such kind of curiosity or kind of problems, I would not have been, this is my perception, such a good teacher, or I mean teacher who is welcomed by the alumni after 5 years, 10 years, 20 years. That is what wealth, you might be creating wealth. This is the wealth for a teacher. True. Being a teacher, what I can say beyond this, that is what a teacher can earn in their life. Right. So the respect, the love, the affection. Sir, when the parents comes and tell us कि मेरा तो सुनता ही नहीं, आपका सुनता है, that made us proud. That made us, यार, we are doing something. Yeah, you want something. सर वो जो लम्हा होता है, and सर आप एक टीचर के लिए देखेंगे जब उसका स्टूडेंट अचीव करके फर्स्ट रैंक लाता है, 100 आउट ऑफ 100 लाता है, वो नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है जितना वो लर्नर को उसका फीलिंग नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा वो जो इंसान जिसने उसने क्रिएट किया है, वो बैठ के उसको महसूस करता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. तो दिस इज फॉर ऑल द टीचर्स, एटलीस्ट कैसे भी टीचर हो, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट. और सर मेरी जर्नी तो बहुत, अभी क्या बताऊं, रोलर कोस्टर टाइप का है. मैं तो एक साइंस बैकग्राउंड का बंदा था सर. हाँ, तो देन आई स्टार्टेड माय करियर इन कॉमर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एंड मैं एक छोटे टाउन से आया हूँ, तो दैट वाज in Jharkhand. Then
I started my journey here in Mumbai University at When one did you college. come in Mumbai? 1997. 1997. How old were you then? Around 18, approx 18, Okay. 18 and a half. Okay. एंड जो भी मैंने आज यहाँ क्रिएट किया है ये पिछले 25-27 सालों में क्रिएट किया है सर. Right. और मुझे बॉम्बे ने बहुत कुछ दिया है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मुझे तो बहुत कुछ दिया है. Right. सो इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाग्यशाली वो नहीं होते सर जिन्हें सब कुछ मिलता है. भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उससे अच्छा बना के अपना भाग्य बनाते हैं. क्या बात है, क्या बात. तो सर मैंने यहाँ जर्नी करी स्टार्ट कॉमर्स से. मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बोला तू पढ़ने में अच्छा है, तू साइंस का है. एंड कॉलेज के ज़माने से मैं मित्तल में था सर. आज भी मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ. तो टीचर ने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज आप सोचो एक साइंस जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा हो और उसके लिए कॉमर्स का हर एक चीज़ नया था सर. वेदर इट इज़ अकाउंट्स, वेदर इट इज़ ईवीएस, वेदर इट इज़ बीसी. और अगर वो टीचर नहीं होते, इसलिए मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ. प्लस इट इज़ बोथ द वे. मैं भी उनके साथ वैसा लगता था सर. कितनी भी बारिश हो, कोई कॉलेज नहीं आता था. आई यूज्ड टू बी देयर इन द कॉलेज. तो उनका भी रिस्पेक्ट धीरे धीरे मेरे लिए बढ़ता चला गया. और मेरी तो आई मीन इट वाज माय नीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Well, where does this quest to learn, सीखने की जो चेष्टा या चाह कहते हैं, फैमिली में does it run in your parents, brothers, sisters? I don't know your background, so. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज ये आपने बहुत टची क्वेश्चन पूछ लिया. बचपन में एक्चुअली मैं भी बहुत नोटोरियस था. Okay. तो मैं कम सुनता था. तो मेरे एक मौसा जी थे, तो वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के. मैं उनसे ही डरता था. तो मेरी माँ ने सजाए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरे को सजा के लिए उनके पास छोड़ दिया. और वही सजा आज मेरा भाग्य बन गया. वो जो पनिशमेंट था माँ बाप का, हाँ. कि तू इनके साथ रहे. हाँ. और मैंने उनको फॉलो किया. हाँ. और मैंने उनको ये तभी से मैं था. बाद में उन्होंने बहुत मुझे रिस्पेक्ट दिया क्योंकि उन्होंने जो क्रिएट किया था वो छोटा होम टाउन. हाँ, एज अ प्रोफेसर देयर इन केमिस्ट्री. और मैं यस. और जो मैंने मुंबई में क्रिएट किया, जब उन्होंने ये देखा कि इतना तूने हासिल किया, उनके लड़कों को भी मैंने बहुत मदद किया है लेटर ऑन. और आज वो इंजीनियर बन के यहीं पुणे में सेटल है. तो तब जो उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया सर, वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा. और मेरे लिए गॉड फादर वही है, डॉक्टर डी झा. डॉक्टर डी झा, धनेश्वर झा उनका नाम था. वो भी डॉक्टर थे? वो भी डॉक्टरेट थे सर. इसलिए तभी से मेरी दिली तमन्ना थी सर कि मैं पीएचडी करूं. एंड इमीडिएटली फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी आई गॉट माय डिग्री इन 2002. आई हैव एनरोल्ड फॉर पीएचडी. तभी कोई नहीं करता था सर. एंड 2007 आई गॉट द डॉक्टरेट डिग्री. आई वाज द यंगेस्ट गाइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सर. And at that time, in 2017 I got the guideship. Oh. And then you have seen my list, almost Yeah. 25 MPhil and PhD. Yeah, it's a long one. Long one. But when you achieved your doctorate, तभी आपके मौसा जी were alive. They were alive. वो थे. हाँ, वो थे. हाँ. अच्छा. So great. So he could see that. Yes, yes. Right. He passed away somewhere in 2017 or 18 somewhere. Okay. हाँ. Yeah, But it's he so was my amazing. godfather. Yeah, it's so amazing. A lot of times for a lot of us, माता पिता ही एक गॉडफादर या एक रोल मॉडल होता है. बट टू लुक अप टू फॉर समवन योर लाइक योर मौसा जी, चाचा अभी भी समझ सकते हैं कि चलो साथ में रहते हैं, सो यू नो यू लर्न समथिंग. बट ये मौसा जी तो इज समथिंग आउट ऑफ द मैटरनल साइड हम लोग बहुत क्लोज है सर. तो अभी ऊपर वाले की, अभी इसमें तो ना आपका ना मेरा जो भाग्य में लिखा था वो था. बट उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ. ऑफ कोर्स मैं डरता भी था. प्लस मुझे एक बचपन में होता है ना कि मैं अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं इनको कैसे बाद में दिखाऊं, मैं भी एक दिन इनकी तरह बन के बताऊंगा. और वो जब अचीव किया ना सर बॉम्ब, तब तक मैंने नहीं सोचा था. बट टीचिंग था फ्रॉम बिगनिंग. बिकॉज आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको, और वो भी क्या था, उनके लड़के नहीं थे. तो मैं मौसी का मतलब एज गुड एज मदर उन्होंने मेरे को, मेरी यशोदा मैया वही है. आज तक मौसी जी जिंदा है और वो मेरे को वही मानती है. क्या बात है. हाँ.
तो मेरा पालन वालन सब उन्होंने ही करा है फ्रॉम द मैं 4 साढ़े 4 साल का होगा सर, बहुत बचपन में मुझे मम्मी ने मौसी फिर आप वहीं रहते थे? फिर मैं वहीं रहा टिल 12th एंड माय इनिशियल दिस थिंग। तो आज भी मम्मी मेरे को मतलब मैं उनको अभी भी मम्मी बोलता हूँ, तो बोलती मैं तेरी तो यशोदा मैया हूँ। तो तभी उसके बाद उनको लड़का भी हुआ, वही मैं बोला उनके लड़के को मैंने मदद करी। तो हाँ तभी भी पापा आते थे तो मैं उनको अभी भी पापा बोलता हूँ। तो वो मतलब वो उनका नहीं सुनता था और वो भाई मेरा सुनता था, क्योंकि एक ट्यून अप होता था उसको जो इवन उसके लिए गार्जियनशिप मैं ही था, यही सिंगर से किया सर, आज वो बहुत सेटल है। ऊपर से डेफिनेटली उन लोगों की दुआ मुझे मिलती रहेगी कि जो उन्होंने सिखाया मैं कुछ उसका कर पाया। थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ पूछूंगा जी प्लीज। लॉट ऑफ टाइम्स एक कंसेप्शन होता है दैट अ टीचर इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बिकॉज मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, मैंने इतनों को खड़ा किया। बट जब हमने स्टार्ट किया तो यू स्टार्टेड विद ग्रैटिट्यूड। सो डू यू सी अ डिफरेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड दी अदर सेट ऑफ पीपल, एंड इज माई अंडरस्टैंडिंग टिपिकली दैट वे? बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दैट इन सम ऑफ द वेदर इट इज़ नॉट जस्ट टीचर्स बट आप कोचेज में भी अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स के भी, so they have a lot about themselves because they try to create human beings, so they have some kind of a arrogance. But you started with Bhagya where you said कि यार ये तो मतलब destiny है ये सब, and then you started about gratitude. So do you see that difference that you have? Sir, that's what my journey was. I started with commerce, then मैं ICW इंटर किया सर, और फाउंडेशन का भी पेमेंट मेरी टीचर ने ही भरा था, बिकॉज दे फाउंड कि इस लड़के में कुछ स्पार्क है, वो कर सकता है। देन आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन MCom ऑल्सो, you know, and then subsequently I have completed my PGDVM, which was distance MBA at that point of time from ICFI. Then I have completed executive MBA from Russell. Okay. That was, I mean, you must have seen, right? Yeah. In marketing. Right. Then I have done my DILIT from Maryland, USA. Right. Then I have started my journey with LLB. Right. As a that also I have completed with first class from University of Mumbai. And then I have started my journey for LLM. Today also I am a learner, I feel, because जितना आप सीखोगे, and मैं कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानता सर। अच्छा, ओके। और मैंने बहुत देखा है सर कि हर कोई ये सोचता है कि भाई ये मतलब लोगों की ये जो है कि वो ऑलवेज भागते कि परिणाम की तरफ। लोग ऑलवेज चाहते हैं कि परिणाम क्या है, कोई उसके प्रयास को नहीं देखता। जबकि आपके हाथ में सिर्फ प्रयास होता है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो अगर कोई आप बोल रहे हो, ऐसा कोई प्रोक्लेम करता है, दैट इज रॉन्ग प्रोक्लेमिनेशन। एज अ वो सिर्फ प्रयास कर रहा है, वो गाइड कर रहा है, वो उसको बता रहा है। बाकी अभी सचिन के गाइड अगर बोलेंगे प्रवीण आचरे, हाँ, तो वो बोलेंगे कि मैं सचिन हूँ, वो गलत है, वो उनकी गलत फहमी है सर। आप सिर्फ प्रयास करते हो उसको सचिन बनाने के लिए, सचिन खुद बनता है। और अगर आप कंपेयर करोगे तो उन्होंने एफर्ट्स विनोद कांबली और सचिन के लिए इक्वल दिया सर, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बट एक कहाँ निकल गया और एक कहाँ चला गया। तो ये हर एक टीचर को, अगर किसी में ऐसी कोई भावना है तो सोचना चाहिए कि टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, तो ही वो अच्छा टीचर बन सकता है सर। आज अगर मैं यहाँ कुछ आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया हूँ आपसे। वो तो आप मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई डोंट नो, बट आपको मैं जाते जाते बता दूंगा कि मैं आपसे क्या सीख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आई वुड लव टू नो, बिकॉज एज आई मेंशन एट द स्टार्ट, जब हमने सोचा कि वील ट्राई टू इनवाइट यू एंड इफ़ यू आर अवेलेबल, एंड देन व्हेन द प्रोफाइल केम इट वाज सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि आई एम जस्ट एन MCom. So when you look at such an elaborate profile and then you realize that you are nothing, so it will be good to know that what I could have contributed to you in these 1.5 hours. It will be amazing to know. And also what that will teach me or make me relearn is हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
एंड जो आपने जो एक बहुत अद्भुत बात की ना, यू आर नॉट मेंशनिंग स्टूडेंट, आप लर्नर मेंशन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट फिर एक क्लासरूम हो जाता है या वन वे ट्रैफिक होता है. Learner is actually a two-way process. You know, you learn, then you question, then you relearn. So you actually you've touched upon a very sensitive thing. So was this thought process of being a learner always, or is what is one of the very important evolution part of Dr. Jha as he moved up the ladder, started learning more and more and more and more? No, I want to be a learner forever in my life. Okay. अभी जैसे सर मैंने आई स्टार्टेड माई पोस्ट डॉक इन AI Right. because when AI started booming up, I thought this is a knowledge where I am lagging. And you won't believe sir, आज जब बच्चे मुझे लेके जाते बोलते हमारे जो सर हैं, he is having knowledge of all science, आर्ट्स एंड कॉमर्स. आर्ट्स का जो कमी था वो भी सर ने कंप्लीट कर लिया. तो ही इज हैविंग वर्सेटाइल नॉलेज, मैनेजमेंट ऑल्सो. होराइजन बहुत बड़ा हो गया. आज अगर मैं AI सीख रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे बच्चों को, आज AI में बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक है सर. एंड माई टॉपिक आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू, इट इज postdoc is very rare of the rarest. Right. When I told you, when I got guideship, I was the youngest. When I got delete in university, no one. Yeah. Then when I started postdoc, it is rare of the rarest. You must have not seen, even as you have done your MCom, tell me how many delete holder was a faculty of yours. No, I also didn't go to college, so मुझे इतना आइडिया नहीं. BCom या MCom में कहीं ना कहीं तो आपको पता चला रहेगा. You must have come across. नहीं है वो क्वालिटी नहीं. तो सर उसके लिए भी मुझे ताइवान के यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना पड़ा. Okay. So I am doing that is from Taiwan University. From Taiwan, where this there AI was course. Yes, AI research, not course. Okay. It is application of AI for strategic decision making on multinational company and transnational company. What elaborate एकदम layman में क्या है? अभी जैसे सर इसमें आपको बताता हूँ कि आप टॉप लेवल, I mean you are one amongst the decision taker. Strategic decision is always taken by highest authority, not higher, and they don't have time much. Right. And to take decision, there are several kind of and several vertical of data. Right. So if they will go in depth of the data, finally they will not able to conclude what kind of decision. Right. And suppose if it is MNC and TNC, then branches is there across the globe. Right. And situation in India is totally different than the situation in Taiwan, than the situation in US, then wherever the company operates. In such cases, how the decision could be taken? So AI is making those data very comfortable for the highest authorities in a one particular way, and accordingly those person can take the decision, viable decision. Again, once the decision is taken, again implication will be and implementation will be different at a different country, at a different level. Okay. So this is what, that's the reason sir I have got one supervisor from the host university, two sub-supervisor from India, two different part of India. One is extreme south, one is extreme north. Okay. And I have taken myself from western horizon of India. Because they want this thing should spread. See, postdoc is very great honor what you are getting, sir. Right. And that too also in commerce and management. So my topic is also fintech. Right. How the financial decision can be taken with the help of technology. Right. So that is fabulous. I cannot disclose much because it is in process. Once it will be done, so definitely I would love to come and share all the research work to you. No, definitely. So it will be a paper that you will release? Yeah. It will be a research like how you have discussed. Right. So I don't have patent. Patent I have. Australia, Germany. That's what I wanted to ask. What are these patents? I read it. You have seen many of them. They are on marketing based. Many of them is technology based. Many of them it is finance based. Okay. And entire description is there. Many of them there are design, patent design. Yeah. Many of them they are copyrights. Right. Suppose I have written certain description. I have taken the copyright from Canadian government. Okay.
So Okay, then this is your research, This your is my thought research. process. This is what. See, this is what the people should understand the importance of your intangible assets, Right, IPR, right, intellectual property rights. right, People should understand that Right. is much more valuable than your financial kind of wealth. right, This will give you wealth forever and ever. right. Sir, just I wanted to give you one example, if you will Yeah, allow. please. Since when this automobile industry started? Long year ago? Yeah, I think 1900s. Yeah, More than 150 years? yeah. And the major player were, Ford Motors, Mercedes, blah, blah, blah. Yeah. Okay. Why Tesla is today number one automobile company? They left behind all the legacy of these giants who have created monopoly for over more than 150 years. Right, So that is what research always teaches right, for a human being, for a teacher, right, for a people like you Right. who is there in finance industry. right, So that is how once you do the research and giving things to the people at large, I think, and I always found the person who is a good researcher is always be a good teacher. okay. And I also found, sir, they are always good as a human being and family man also. I give equal time to my family people also. They are also very happy. I mean, since you're talking about Because family- we do research. right. So since you talked about family, who all are there in your family right now? I have, two kids. Both are girl. One is preparing for NEET. Okay. She was also topper. Wow. I got, which was my dream. Right, She has fulfilled, my elder daughter. right, And I got a letter from CBSE board Delhi. She is amongst, top, because she got 100 out of 100 in 3 subjects. wow, 99 point something her percentile was there in 10th. okay. So once I had 100, okay, that was also because many of my learner got in their university exam or CA exam or ICWA exam. Right, But once I got that letter, sir, after grade card for almost 5 months after the actual result from CBSE board Delhi, right, and school asked me to come and collect. That letter was something which I cannot express in words. wow. As That a is what- father, as it a is- father, what Yeah. more you expect from Right. your child? yeah. And my wife is also working in aviation industry. She is a flight dispatch officer. Oh, okay. Earlier she worked in Jet Airways, then Air India Express. Now she is working for Akasa Air. Oh, wow. Interesting. This is how. And younger daughter? The younger one is in 6th standard. Okay. Still young. हाँ, वो बस- भी टॉपर है कि टॉपर है बट उसका इंटेलेक्ट अलग है सर. अच्छा, एंड अच्छा है कि हम लोग समझते हैं वट एवर हर इंटरेस्ट, इफ शी इज इंटरेस्टेड इंटेलेक्ट वाइज, शी इज फेवरेट. मेरी बड़ी डॉटर आज तक क्लास मॉनिटर नहीं बनी थी. हाँ. और ये हर एक साल क्लास मॉनिटर है, तो इसका स्किल कुछ अलग है सर. अलग है, राइट, आई मीन आप बोलेंगे ना मेहनत करके कोई बच्चा आगे बढ़ता है, हाँ. कोई एक इनबॉर्न टैलेंट आता है. हाँ. उसमें वो उनके टीचर भी खुश होते हैं ऐसा. हाँ. जैसे मैंने आपको आशीष का एग्जांपल दिया, आपने सोचा कि ये अच्छा नहीं था, बट उसने मेरे लिए रिसर्च में भी काम किया है, मेरे तारंगन के लिए भी काम किया है, कल्चरल के लिए काम किया है. एंड बीइंग अ पर्सन फ्रॉम फाइनेंस, टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज होना हाँ, इज इटसेल्फ अ बिग स्किल सर. राइट, ट्रू, इसीलिए उसके एक बात पे मैं आ गया, क्योंकि मेरे को जब जरूरत थी जो मुझे नहीं आती थी, हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही असिस्टेड मी. या, सो आज अगर उसने बोला, एंड सॉरी आई कुड कैंसिल few नहीं, नहीं, appointment उसमें of कोई yours no, कोई because of my schedule. No, no, Otherwise that's it would have been last week only. नहीं, that's fine. I mean, the good thing is it is good to wait for individuals like you
because it is genuinely very different. Because the images of a teacher, but here we are talking a lot about research and we are talking a lot about learning, and then we are connecting is to the quality of the person and so on and so forth. A lot of times in the quest of having a great professional career वो चीज़ें रह जाती है. So it was a privilege to wait for you, genuinely sir. Now सर if- एक अगर आप इंटरप्ट अगर आप इजाजत दो नहीं, दे तो please, मैं please, एक the चीज floor is आपके लिए yours. बोलना आप चाहता बोलते रहिए सर. हूँ आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि सर सम्मान एक ऐसा निवेश है, हाँ, राइट, द रिस्पेक्ट व्हाट वी गिव, सम्मान एक ऐसा निवेश है फाइनेंस आपके लिए हाँ, जिससे हम जितना दूसरों को देते हैं वो उतना हमें ब्याज सहित वापस मिलता है विद इंटरेस्ट. with interest. True. I agree. सो अगर इंसान ये चीज़ समझ जाए ना सर हाँ. तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे सर. I think it's same with gratitude also. जितना grateful रहोगे उतना ज़्यादा आपको बट रिस्पेक्ट देखो, ग्रेटिट्यूड फिर भी बच्चों में आ जाता है. हाँ. रिस्पेक्ट देना आजकल बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है. बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो रिस्पेक्ट का जब और हमने एरा देखा सर, हमने वो भी दिन देखा है जहाँ हमारे गांव में सर, मैं 83 की बात करता हूँ, 5-6 गांव मिला के एक ट्रांजिस्टर था. 83 का मैं तो एकदम छोटा सा बच्चा था, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है 78 बॉर्न. तो वो मैच चल रहा था वर्ल्ड कप वाला, हाँ, और बागीचा था. हाँ, सब गांव वाले मतलब दूसरे गांव वाले आके एक ट्रांजिस्टर, एक वॉल्यूम, और सब ऐसे करके सुन रहे थे. हाँ, और बहुत मतलब मैं तो काउंट भी तभी उतना, मेरी याददाश्त तभी उतनी नहीं. वो दिन भी देखा है, और वहाँ से आप अगर आप देखोगे कि Right. कितना डेवलपमेंट हुआ आज. definitely. मैंने फिर वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन का भी एरा देखा है, मैंने कलर टेलीविजन, Right. मैं पेजर का ज़माना देखा, मैंने मोबाइल देखी है, लैंडलाइन, वो Dial वाला. अपना हाँ. वो देखा है. फिर मैंने सोचो पेजर देखा, फिर मोबाइल जो सबसे बड़ा आया था तब तक सर मैं लकीली कमाने लगा था. हाँ. तो जो बहुत बड़ा मोटरोला, तभी हम लोग 25 रुपया और 10 रुपया ऐसा कुछ हमारा इनिशियल चार्जेस होता था, फिर 10 रुपया किया. हाँ. वो ज़माने से मैंने मोबाइल को देखा है. और कितना चेंजेस है सर आज. AI आपसे पहले आपके सारी चीज़ों को बता रहा है. राइट. ट्रू. तो हमने जो चीज़ देखा है, आई थिंक आज के बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं. हाँ. मेरे खुद बच्चों के लिए मुझे लगता है मिस कर रहे हैं. मैंने जो ज़िंदगी मेरे गांव में बिताई, और मैंने जो वो नेचुरल एयर, वो नेचुरल वो मिट्टी में खेलना वगैरह. वो सब खत्म है सर आज के डेट में. राइट. तो वो मैं चाहूँगा कि अगर वैसी कुछ व्यवस्था बने हाँ. तो आई विल बी वेरी हैप्पी. Nowadays, I think those mud grounds are converted into turfs. मेरे सोसाइटी में कहीं नहीं है सर. True. मेरे कॉलेज में एक जगह है, हमने मैडम को बोला मैडम इसको प्लीज डिस्टर्ब मत करो, हाँ. एक जगह तो रहने दो. Yeah. कम Very से good. एक जगह तो रेन वाटर हार्वेस्ट. कब मेरे को तो दिल लगे कि Yeah. भाई वहाँ पानी जा रहा पानी है. जा रहा सर एक टीचर में ना सर बहुत आज आप देखेंगे मेरे सोशल लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. हाँ. पता नहीं मतलब ऐसा कोई बोलेगा नहीं, फिर भी अंदर से फीलिंग होती है. Right. अभी किसी ने पूछा तो मैं बोला बेटा मैं चाय नहीं पीता. हाँ. अगर मैं खुद ऐसा सब करूं और फिर मैं किसी बच्चे को बोलूं बेटा तू मत कर, हाँ. तो वो कहीं ना कहीं अपने में हिचक बनी रहती है. तो मैं Hypocrisy जैसा हाँ, feeling तो है. मैं चाहता हूं कि सर और बच्चों को मैं ही ऐसा क्यों ना बन जाऊं कि बच्चों को लगे कि, और सर बिलीव मी, पता नहीं मैं शायद आप बोलोगे मैं टॉल क्लेम्स कर रहा हूँ, पीते हैं सिगरेट भी पीते हैं, बट मेरे को देख के भाग जाते हैं. हाँ. तो मुझे लगता है मैंने जीत लिया. हाँ. और मैं भी सर अवॉइड करता हूँ. आप बोलते हैं ना 6:30 बजे क्यों निकलते हो, ताकि मेरे और उनकी नज़र ना मिले. हाँ. वो बच्चे अंधेरे में मैं निकल गया, हाँ. सुबह अंधेरे में मैं आ जाता हूँ. हाँ. दिन में क्या होता है मुझे तुम क्या करते हो मेरे सामने नहीं कर रहे हो ना, आई एम हैप्पी. Happy. इतना रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट मिल रहा है सर, वही सम्मान बहुत बहुत बड़ी चीज़ बहुत होती बड़ी है. चीज़ है. True. There's so many कितनी सारी छोटी छोटी नगेट्स है, एंड आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स
would not just be coming to you for subjects but even life lessons. And I think वो ज़्यादा समय लेता रहेगा आपका as compared to even teaching any kind of a subject. सर एक्चुअली बच्चों के लिए ना सर मेरे पास एक बहुत अच्छा ये है कि हर कोई, क्योंकि मैंने अगर मेरे को देखा कि मैं इतना अच्छा सक्सेसफुल हो सकता हूँ जिसके लिए मतलब मदर फादर ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी सुधरेगा भी, Right. तो अगर मेरे में इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो बच्चे में तो बहुत पोटेंशियलिटी है। तो मैं बहुत जगह पीपीटी आपको नहीं दिखा बट मैं पीपीटी में लिखता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे टीचर बोलते रहेंगे यू आर यूजलेस, यू आर केयरलेस। सर मेरे लिए यू आर यूजलेस मैं अगर जब ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मुझे अलग अर्थ लगता है, और या मुझे यू आर केयरलेस अलग अर्थ में लेता है। मुझे लगता है कि दे हैव बीन केयर्ड लेस। अगर आप केयर करते हो ना सर, वो बच्चा आपके लिए रात के 12 बजे खड़ा रहता है। मैंने मतलब मेरे ऐसे अनुभव हैं, मेरे लिए एग्जाम्पल्स हैं, और दे आर नॉट यूजलेस, दे हैव बीन यूज्ड लेस। सर उन्हीं बच्चों से आप जो देखेंगे ना, ये जो अपने 25-30 जो आईपीआर कॉपीराइट पेटेंट डिजाइन 6 कंट्रीज। और ये गूगल स्कॉलर क्या है? वो एक साइट है सर, जिसमें जो बहुत रिसर्चर मतलब बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं उनका इंडेक्सेशन होता है। मतलब वो अगर उस पर टॉप लेवल पे रहते तो आई इंडेक्स, एच इंडेक्स, उतने लोग साइट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। ये मुझे नया जानने मिला when I was reading तो सर ये सारे रिसर्च में मेरे बच्चों ने मुझे मदद करी है। और उसमें आप 5-6 नाम जो देखते रहेंगे मेरे अलावा, वो मेरे खुद के बच्चे हैं सर। और अंडरग्रेड अभी जैसे आशीष ने बताया, ही वॉज देयर विथ मी इन रिसर्च। सोचो इस बच्चे को भी मैंने रिसर्च सिखाया सर। तो आज भले ही मेरे को यही लगता है कि भाई मतलब तुम लोग यूजलेस नहीं हो, तुम लोग केयरलेस नहीं हो, तो बच्चा सर इतना आपसे मिल जाता है, चल हो जाता है। देन तो you talked about transforming life. If you know there was this, because you're a researcher and a teacher also, what would you choose? A research that changes systems or a lecture that will change a student's life? What gives you more satisfaction? Sir, both are, I mean, both are interdependent to each other. I told you my previous conversation only कि a good researcher can only be the good teacher. Right. Good. तो अगर मैं आज आपसे आप बोल रहे हो कि अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने उतनी सारी चीज़ें सीखी है, उसके बारे में जाना है, उसके बारे में अगर मैं सिर्फ ऐसे आऊँगा और बच्चों को सिर्फ दैट्स द रीज़न I can attract those learner for 1 hour. Right. That not आपको लगता है 1-1 घंटा आप, और वो भी कॉलेज वाले बच्चे, और 140 का स्ट्रेंथ, सोचो सर कितना डिफिकल्ट है। नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप अच्छे रिसर्चर नहीं हो, आप उनके लेवल में जाके नहीं सिखाते हो, नहीं बताते हो, और मैं कभी भी उनको ये नहीं डिग्रेड नहीं करता हूँ सर, कभी भी नहीं करता हूँ। लास्ट बेंचर इज माई फेवरेट लर्नर। बेस्ट लर्नर मेरे को वहीं से मिलते हैं। और कलाम जी ने गलत नहीं बोला था, एकदम सही बोला था। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी लास्ट बेंच पे नहीं बैठा, बट मेरी बिटिया, कल मैं गया था पेरेंट्स मीटिंग में, बोलते पापा सेकंड लास्ट बेंच था, मैं बैठता। मैं बोला बेटा मैं तो कभी नहीं बैठा। तो इट्स लाइक अपना परसेप्शन है सर। what is that one thing, कुछ भी हो जाए बट अ स्टूडेंट विल ऑलवेज लीव व्हेन ही लीव्स योर क्लासरूम। तो एक कोई चीज़ वो सीख के जाएगा ही, कुछ मतलब ये तो आप छोड़ते ही नहीं हो, इतने सारे आपने नगेट्स दिए, बट एक जो चीज़ है वो हमेशा सीख के ही जाएगा कोई भी आपका स्टूडेंट। कोई भी नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए। मैं एक बोलना चाहता हूँ, और बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि कल मैं कहाँ रहूँ, कल तुम कहाँ रहो, पर तुम जहाँ रहो मेरी यादें वहाँ रहे। अगर ये यादें नहीं रहती तो शायद आशीष ने
उसके लाइफ में बहुत सारे टीचर मिले रहेंगे सर, Right. उसने मुझे ही क्यों चूज़ किया, Right. मुझे ही क्यों बुलाया, मुझे इस पॉडकास्ट के लिए टीचर्स डे में क्यों स्पेशल प्रेफरेंस मिला। Right. कल तुम जहाँ रहो मेरी यादें वहाँ रहो। अगर मैंने ऐसा इम्पैक्ट अपने बच्चों में नहीं रखा तो आई थिंक आई एम फेल एज अ टीचर। Right. वही टीचर मैं सक्सेसफुल मानता जो अपने स्टूडेंट में ऐसा क्रिएट किया इम्पैक्ट, True. ऐसा वो बना दिया उसने अपने आप को। Right. तो और बच्चों का सर मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि बेटा निंदा से घबराकर लक्ष्य को ना छोड़ो, निंदा से घबराकर लक्ष्य को नहीं छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले राय बदल देते हैं। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले राय बदल देते हैं। हाँ. मेरे साथ भी हुआ। Yeah, yeah. पहले से बोलते थे कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, आज मैं बहुत सक्सेसफुल। सर मैं आप पता नहीं आप मैं बहुत बट मैं फाइनेंस जानता हूँ, मुझे पता है पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। हाँ. और आज ये बंदा जो आपके सामने बैठा है, नॉट टू मतलब मैंने देखा मेरे दोस्त उनके सिस्टर यहाँ हैं, उनके पास खुद का फ्लैट नहीं है। आई बॉट 3 फ्लैट्स इन मुंबई, 1 इन नासिक, 3 एट माई प्लेस। तो इतना वेल्थ क्रिएट किया सर इसने 27 साल में सिर्फ। Wow. एंड वॉट आई डोंट हैव, एवरीथिंग आई हैव। Amazing. Touch wood. और वो पैसिव मनी से आता है, Yes. सिर्फ मेरे पगार से मैं सोचूंगा नहीं होता है। Right. मैंने अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा है, Right. सब जगह से पैसे आते हैं। Wow. और वो सीख मैंने इनबिल्ट, मतलब जब हम प्रोफेशन में आए, जब कॉमर्स, मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ ना सर, आज मैं जब भी सीखता हूँ तो मैं हर एक चीज़ लीगल, मेरी प्रिंसिपल मैं बोलती तू तो अच्छा लॉयर बन गया, लॉ का तेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया। क्योंकि मैं जब भी ड्राफ्ट करता हूँ ना सर, लीगैलिटी जो मैंने इतने सारे लॉ पढ़े वो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे जहन में आ जाती है। तो तभी जब भी मैं इन्वेस्ट करने का था, जब भी मेरे सेविंग्स की बात थी, तो मैंने अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट जगह पे इन्वेस्ट करा। How do you impart this sort of a mindset in your students since you come from finance and make Very it good question. very easy for them? सर आज भी पीजी में कॉर्पोरेट फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके ऐसा टॉपिक है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। बच्चे गेट कंफ्यूज। Right. तो मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तेरे घर में सबसे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर कौन है? I would say mother. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। उनको पता है कि उनके फंड का अप्रोप्रिएट रिटर्न कहाँ मिलेगा। Totally. अगर वेडनेसडे को ये भाजी सस्ता मिलता है तो वो वेडनेसडे को ही खरीदने जाएंगे। Agreed. मैं बोला उनसे सीखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In fact, I was sharing with somebody just one nugget from my end that we learn entrepreneurship also from our mother. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये सब मैं क्लास में बताता हूँ। Oh. और एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, अगर आपको इंडस्ट्री ढूंढना है, यानी इंडस्ट्री कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, आप देख रहे हो प्रोडक्शन वगैरह, तो आप कहाँ जाओगे? आउट ऑफ दिस, हाँ फैक्ट्री देखने के लिए नहीं, कैंटीन जाओ। अच्छा, ओके। दैट्स योर फैक्ट्री। कैंटीन में जाओगे, हर एक रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में और बिक रहा है। बच्चा क्या समझता है सर, और मैं अच्छा टीचर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके लेवल में जाके सिखा रहा हूँ। हाँ, अंडरस्टूड, इनसाइटफुल। तो अभी ये जो आप दैट वाज द फर्स्ट फैक्ट्री फॉर अस। अरे उसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। सो किचन इज द फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री। राइट। हाउ द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। आप बेटा चपाती खा सकते हो, रॉ आटा नहीं खा सकते हो। एंड हाउ द रॉ आटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू चपाती। तो एक वर्क इन प्रोग्रेस, फाइनेंस का थोड़ा आज शायद आपने एमकॉम करा है तो आपको शायद समझ में आए। एक वर्क इन प्रोग्रेस का कंसेप्ट आता है, एस्टिमेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ WIP, जहाँ पे हम लोग मटेरियल 100% लेते हैं और स्टैंडर्ड रहता है लेबर। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ सर बच्चों को और बोलता हूँ कि तुम देखो घर में मम्मी कैसे रोटी बनाती है, 100% आटा ले ली, मटेरियल हो गया तेरा। उन्होंने क्या किया, 50% लेबर डाला और 50% ओवरहेड। अब इसके बाद ये तुम्हारा WIP है, फिनिश गुड्स बनना है, और क्या लगेगा,
आटा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? लेबर लगेगा और ओवरहेड लगेगा। बच्चा क्या समझ जाता है सर, फॉर एवर उसके दिमाग में रटता ही नहीं है। Yes, agree. And then after that, our mother teaches us marketing कि कैसा लगा खाना, एंड फीडबैक भी मांगते हैं कि सही था क्या नहीं है, एंड देन वो इम्प्रूव करने को भी परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी आपने क्या बोला, मैं क्या बोला आपसे सीख लिया। ये मार्केटिंग वाला नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोट करूँगा। मैंने आपको क्या बोला सर, मैं सीखते सीखते आपको बताते जाऊँगा। नहीं, थैंक यू सो मच, बट दिस इज व्हाट जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फादर्स, मैं जब शेयर कर रहा था किसी से 2-3 दिन पहले ही, दैट एंटरप्रेन्योरशिप मम्मी ने सिखाई, फादर ने कैपिटल दिया, परफेक्ट, बट धंधा कैसे करना है या वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है वो माँ ही बता सकती है, एंड वो कोई और नहीं बता सकता। और हम लोग अंडररेटेड रखे अभी आज तक, अंडररेटेड, तो वो रिवाइव होना बहुत जरूरी है। तो आपने जो ये क्वेश्चन पूछा सर फाइनेंस का, मैं बच्चों को और इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बोलता हूँ बेटा तुम लोग को अगर पूछता हूँ कि तुम्हारे को कितना मिलता है, आने जाने का खर्चा एंड ऑल, सब बताते हैं कि ये एमकॉम के बच्चों, छोटे नहीं, तो कोई जॉब पे से आता है या तुमको पॉकेट मनी बचता, तो सब बोलते सर इतना है, उसमें से मैंने इतना बचाया। मैं बचाया उसका क्या किया, क्योंकि इंडियन ब्लड में सेविंग तो ब्लड में है। अगर तुमको इवन प्राइस सेंसिटिव नहीं, और अगर बर्थडे के लिए भी हम गिफ्ट देते हैं सर, या बोलते हैं चलो 10,000 या 5,000 तुमको दिया बर्थडे, वो बच्चा कभी 5,000 खर्चा नहीं करेगा, वो इंडिया का है। अब्रॉड वाला 5 की जगह में 10 का खर्चा करके आएगा, इंडिया वाला 5 में से 4 खर्चा करेगा, 1 बचा लेगा। वो सेविंग में बेस्ट है, दे आर वेरी पुअर इन इन्वेस्टमेंट। वो टेक्निक इंडिया में सिखाना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू इम्पार्ट? हाँ, तो सर मैं वहीं पे आता हूँ। तो उनको क्या लगता है सर हमारा डीमेट अकाउंट होना चाहिए, मेरा बैंक में अकाउंट होना चाहिए, सर मेरे पास बहुत ज़्यादा होगा तो मैं कोई स्टेट खरीदूंगा, फ्लैट खरीदूंगा, ये ऐसा मेंटालिटी है। मैं एकदम छोटे लेवल में लेके जाता हूँ सर। मैं बोलता हूँ बेटा तू गुल्लक में पैसा डालते हो ना, यू कीप योर कैश, व्हाट इट गिव्स। नेक्स्ट ईयर प्राइस बढ़ जाता है, तेरा परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाता है, राइट। तो क्या किया तूने, राइट। तो क्या करना चाहिए? मैं बोला देख बेटा मैंने क्या किया है, या मैं जब से मेरे को समझ आई, अगर तुम उसी पैसे को इन्वेस्ट करके सिर्फ सिल्वर कॉइन खरीद ले, बहुत सारे सिल्वर कॉइन हो जाएंगे, गोल्ड कॉइन खरीद ले, तुमको उसके लिए ना बैंक में जाने की जरूरत है, ना तुमको म्यूचुअल फंड ढूंढना है, एकदम बेसिक चीज है सर। और फिर मैं एट द एंड ऑफ द ईयर ढूंढता हूँ कितने सारे बच्चों को गोल्ड कॉइन रहता है सर। मैंने ये अगर कर दिया सर, और क्या चाहिए एक टीचर के लिए, इससे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो सकता है? माइंडसेट ओनली ऑटोमेटिकली गेट चेंज। फिर मैं उनको कुछ केस स्टडीज बताता हूँ, लाइक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। आई थिंक इट्स जस्ट माइंड, आई फील इट्स अ माइंडसेट, सोच। ओके। और मिडिल क्लास, ओके, the only difference money is works, yes, money earns for them, whereas we earns the money, right. यही एक फर्क है, right. और कोई फर्क नहीं है सर। right. हम लोग जिंदगी भर कमाते ही रह जाते हैं, और उनका पैसा कमा के कितना और वेल्थ क्रिएट कर देता है। बट सर आज का जनरेशन आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया है, बिकॉज एक्सपोजर बहुत बढ़िया है इंस्टाग्राम वगैरह का, सो दे वांट इंस्टेंट एवरीथिंग, फास्ट क्विक कॉमर्स, फूड फास्ट चाहिए, फास्ट फैशन आ गया है, सो हाउ डू यू स्टिल टैकल एंड यू नो ट्राई टू इवन मनूवर दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट? सर कितना भी है वो इंडिया का जीन्स है। अच्छा, मैं आपको एकदम चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट में लिख के देता हूँ, ठीक है। इसके लिए 2008 का मेल्टडाउन अपने को कुछ नहीं कर पाया, कोविड मेल्टडाउन अपने को कुछ, अभी भी वर्ल्ड में स्टिल रिसेशन इज गोइंग ऑन, इंडिया को हिट नहीं कर पाया, बिकॉज वी आर वेरी गुड इन सेविंग, वो जेनेटिक है अपना, बट वी आर वर्स्ट इन इन्वेस्टमेंट।
आप वेल्थ में हो सर, अभी भी बताओ शेयर मार्केट में इंडियन का शेयर कितना है? वेरी मिनिस्क्यूल, लेस देन 10%, Less लेस देन 5% इवन। अभी गूगल करोगे तो पता एक्टिव चलेगा। क्लाइंट्स डीमैट अकाउंट सर मैं गूगल में करता हूँ, ठीक है। क्यों इतना? आज भी मतलब फॉरनर ही पैसा बना के जा रहे हैं अपने पैसे से। सो वेयर वी आर। बट मैं जहाँ तक रीच करता हूँ सर, मैं उन बच्चों को बताता हूँ, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर कि TCS का तेरे को जॉब मिलेगा और TCS तेरे को ऑफर करता है कि मैं 15 लाख 20 लाख का तेरे को पैकेज दे रहा हूँ, या फिर TCS के 20 शेयर्स तेरे को खरीदने के लिए दे, तो क्या पसंद करेगा? लोग पैकेज पसंद करेंगे। यही आंसर आता है सर। यही रीजन है, एंड दैट इज व्हाट द मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म विद NEP। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस पर बात करूंगा सर, कि क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं जान रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन भी देख रहा हूँ आज इंडस्ट्री में। तो सर आज वो हमने माइंडसेट बना दिया इंडियंस की कि मैं TCS का पगार में इंटरेस्टेड हूँ, TCS का ओनर बनना नहीं चाहता हूँ। ऐसा था मेरे जनरेशन तक। आज का सर मेरा बच्चा, मतलब मैं अगर पूरे क्लास में देखूँ 5 तो एंटरप्रेन्योर के लिए फिक्स है, कितने ने तो ऑलरेडी सेटअप कर लिया है सर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन जनरेशन, दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। मैं बोला था कि यू नो योर 19th century was the century of British, or 20th century was the century of American, 21st century will be the century of Indians in days to come. क्योंकि माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है सर। मैं कितना बोलने के बाद भी सर MCOM में एक 100 के करीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें से 5 बच्चा गोल्ड तक क्रिएट कर सकता है। बाकी तो मैं मिस ही कर गया। यही जाके आगे कुछ ना कुछ बनेगा सर, इसी के पास वेल्थ रहेगा सर। बट अभी के जो बच्चे हैं, आर दे फाइनेंशियली क्यूरियस अबाउट पर्सनल फाइनेंस? सर कितने का पोर्टफोलियो देखोगे हिल जाओगे। 70 लाख 90 लाख का पोर्टफोलियो लेके बैठा है। मेरे अंडर में पड़ा हुआ बच्चा आज कितना करोड़पति है सर। 17 कंपनी चला रहा है वो। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। So now people are getting financially aware, वो अवेयरनेस आ रही है। मतलब पहले जो था ना राजा का बेटा, मतलब अगर बिजनेस की बात करें, आई फील आपका भी कोई बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं रहेगा, मैंने आपके टाटा बिरला अडानी अंबानी के अपन नहीं है, तो वो माइंडसेट चेंज हो रहा है सर। आज वो नहीं सोच रहे कि हाँ अंबानी बिजनेस कर सकता है। कोई छोटा से छोटा अगर अच्छा आइडिया है और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है पीपल एट लार्ज। मैं उनको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बोलता हूँ। ओला के पास कितना कार है? एक भी नहीं। कितना पैसा इन्वेस्ट करता है पेट्रोल ड्राइवर के लिए? एक भी नहीं। जोमेटो को कितना रेस्टोरेंट? तब उनको समझ में आ जाता है सर कि यार आज बिजनेस करने के लिए मुझे कैपिटल की जरूरत नहीं है। मैं ये ढूंढूं कि ये प्रॉब्लम को अगर मैं कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूं, सर दिस इज व्हाट द रिसर्च इज, तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। और फिर मैं जब टेस्ला का एग्जांपल देता हूं, खुश हो जाते बच्चे। क्या किया उसने? ऑटोमोबाइल सेक्टर को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ई व्हीकल में ईवीएम बना के वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंपनी बन गया सर। अमेज़न, मतलब हम लोग किराना विराना छोड़ के डायरेक्ट ऑनलाइन बेचो, किसी का कुछ लेना देना नहीं, वर्ल्ड का टॉप। मैं गूगल को जब एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि बेटा बता वर्ल्ड की कौन सी कंपनी है जो तेरे को सब कुछ फ्री देती है, तेरे से एक पैसा नहीं लेती है, तो पहले तो नहीं आता है। बाद में जब गूगल का एग्जांपल देता हूं, उनके सर तोते उड़ जाते हैं सर उनके, कि सब कुछ तेरे को फ्री दे रहा है बेटा, तेरे से एक भी पैसा नहीं मांग रहा है, और हर एक 2 सेकंड में तू गूगल को याद करता है, तो भी तू कमा सकता है सबको फुकट में देके। वो इंडियन माइंडसेट थोड़ा डिफिकल्ट है चेंज। वैसे टीचर भी होने बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सो वो माइंडसेट। सो अब जब ये कह रहे हैं, मैं मेरे मेंटर को याद करता हूँ, एंड मेरे मेंटर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोलते हैं। इनफैक्ट 2 चीज़ें जो आपने कही वो भी हमेशा मेरे जहन में डालते हैं, दैट अ गुड आइडिया विल ऑलवेज गेट कैपिटल फ्रॉम समवेयर। कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती बिजनेस करने के लिए, एंड टू फ्री इज़ द बेस्ट बिजनेस मॉडल। यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। अगर आप फ्री में देते जाओगे, वन डे द थिंग्स विल कम बैक टू यू।
but you should not be doing it for the sake of it. But free is the best business model, and you see Perfect. all business models are built. Facebook हो गया, Meta जो आज का है, या Amazon आपको 1500 में जो वैल्यू देता है, they are all and he puts a very nice point that business and उन्होंने एक पॉइंट सिखाया था that बिजनेस का हेतु पैसा बनाना नहीं होता. बिजनेस का हेतु मार्जिन्स सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज से बढ़ते हैं. आप कैसे अपने बिजनेस को अच्छे से तराशते हो, उसको अच्छे से बढ़ाते हो उससे. एंड देन वन थिंग स्ट्रक मी दैट एक्चुअली ओरिजिन ऑफ बिजनेस was not to earn profit but to solve problems. And now actually it has changed the mindset, but जो actually basic business का था कि कोई need को आप सर्व कर रहे हो, और जब आप need को सर्व कर रहे हो तो आप profits और margins का नहीं सोचते, आप customer के बारे में सोचते. परफेक्ट. एंड वो जो आपने अभी जोमेटो के बारे में कहा, अभी के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो दे आर गोइंग टू बी मोर कस्टमर फेसिंग, ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू. एंड आई वाज शेयरिंग विद वन ऑफ माय टीम मेंबर्स 2 days back, वन लास्ट पॉइंट इज आपके लिए शायद से रोल मॉडल्स विल बी अंबानी एंड ऑल, बट हमारे लिए रोल मॉडल्स विल बी कामत ब्रदर्स. यस. और समवन लाइक दीपेंद्र गोयल, Yes. बिकॉज हम उनको देख के रहे हैं. बड़े Yes. हो रहे. सो आई थिंक द एंटायर जो आपने कहा ना इकोसिस्टम और माइंडसेट काफ़ी चेंज हो Is getting changed because of these, new entrepreneur and first time entrepreneur, what we can call it, and created a huge impact in the world. सोसाइटी. एब्सोल्युटली. Bill Gates का father was not a businessman. Today is world's largest. या सेकंड लार्जेस्ट कंपनी. Second largest. I mean ये तीनों में टेस्ला, Amazon, ये ऊपर नीचे Apple, ये अभी चार पांच. अभी Nvidia हाँ, आ बस गया. यही 4-5 जो हैं सर आपके. उसमें इनका कोई भी आप देखेंगे नहीं था. अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं. राइट. और वही चीज सर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में डालनी चाहिए. सो यू थिंक द NEP दैट इज कमिंग इज रियली ट्रांसफॉर्मिंग? NEP, yes, to some extent. सर अभी आप कुछ हाइलाइट्स मैं NEP की देना चाहता हूँ, इफ यू विल Yeah, please. अलाउ मी. सर व्हेन वी वर एज अ स्टूडेंट हम सोचते थे कि सिर्फ CA वाला आर्टिकल करता है. आज मेरा हर एक बच्चा आर्टिकल कर रहा है. I'll tell you the pattern is, थर्ड सेमेस्टर में दे हैव फील्ड प्रोजेक्ट. फील्ड प्रोजेक्ट्स कंपलसरी करना है, उसके लिए कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा. बच्चे को CA के पास जाना है, वहाँ जाके ऑडिट का एंड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर वी आर टीचिंग देम ऑडिटिंग. दिस इज फॉर BCom. आई एम टॉकिंग अबाउट BCom BAF. मैं BAF के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, BAF बट के लिए. मैं यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो Right. मैंने ये ऑब्जेक्ट लेके हमने, और हमको फ्रीडम मिला सर सिलेबस बनाने का. पहले हमको जो थोप दिया जाता था अभी हम वो करते थे. राइट. फिर हमने उन बच्चों को बोला कि तुम ऑडिट का फील्ड प्रोजेक्ट करने जाओगे थर्ड सेमेस्टर में. राइट. फोर्थ सेमेस्टर में वही बच्चा सर थर्ड एंड फोर्थ में टैक्स पढ़ रहा है. फोर्थ सेमेस्टर क्योंकि तभी आपका ये चालू होता है GST रिटर्न फाइलिंग का. तो फोर्थ सेमेस्टर में बच्चा GST रिटर्न फाइल सीखता है, एंड फिफ्थ सेमेस्टर में GSTR सीखता है, और सिक्स सेमेस्टर के लिए कंपलसरी है OJT करना, व्हाट इज दैट? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. OJT. ओके. कंपलसरी है, तब तक हम उसको सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे. राइट. दिस इज हाउ द सिस्टम इज. एंड जो रिसर्च में अच्छा होगा सर उसको हम लोग अभी 4 year डिग्री कर दिए. सो अगर किसी को अब्रॉड जाना है तो 16 years स्कूलिंग हो जाएगा. Schooling हो वो जाएगा. प्रॉब्लम जो था Extra वो नहीं करने का. करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि योर CGPA अभी क्योंकि ग्रेड आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है, शुड बी 7.5. अच्छे आते हैं बच्चे लोग को, आ जाते हैं, मतलब हमारा टच जो क्राउड है उसमें आ जाता है. तो उसमें रिसर्च हम लोग 2 टाइप के रखे हैं, ऑनर्स विथ रिसर्च, ऑनर्स विथ पेपर, जो पहले साइंस में हुआ करता था. ओके. तो बंदा जो थ्रू पेपर करेगा वो अच्छा जॉब, अगेन ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, थोड़ा रिसर्च. और जो रिसर्च वाला करेगा सर वो डायरेक्ट उसके बाद PhD के लिए एलिजिबल हो जाएगा. सोचो रिसर्च पे कितना Focus UGC है. गवर्नमेंट सोच रही है. सोच नहीं है. नहीं. आज मेरा बच्चा सर 2 सेमेस्टर करता है, जैसे SY का ब्रेक मिलता है, यानी इन द मंथ ऑफ मार्च वो फट से चला जाता है अपना ऑडिट का
ट्रेनिंग लेना चालू कर देता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब नहीं, फील्ड फील्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स में और लिख के, और वो इवेलुएट भी वो चार्टर्ड ही करके देगा मुझे कि उसने कैसा ऑडिट किया, क्या सीखा, और सबका रिपोर्ट बनाना है उसको, ओके वो मुझे सबमिट करना है, उसी में इवेलुएट करेगा टीचर, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल उन्होंने क्या ग्रेड दिया, इंटरनली हमने जो पूछा उसने क्या आंसर दिया। गॉट इट। जैसे बच्चा मई जून में कॉलेज ज्वाइन करता है सर, तब उसका स्टार्ट हो जाता है सेमेस्टर 4 का CEP, उसको बोलते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। ओके तो कम्युनिटी के लिए बीकॉम का बच्चा कम्युनिटी को कैसे जाके, डॉक्टर तो नहीं बन सकता या तो कुछ नहीं कर सकता, तो अभी जैसे मेरे 4th क्लास हैं या बहुत सारे रिक्शा वाले हैं, उनका रिटर्न कोई फाइल नहीं करता, और जाते तो पैसा लगता है, ये फ्री में करके देते हैं ITR, ओह और वो लाके उनको बताना है अपने को हाउ दे डिड, और नंबर ऑफ आवर्स इज फिक्स, 120 आवर्स 150 आवर्स हमने ज़्यादा रखा है थोड़ा बच्चों को, लेट देम हैव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। राइट फिर जैसे वो ख़त्म करेगा सर, नवंबर से मार्च तक वो GSTR का उसी CA के पास करेगा, एंड देन इफ़ ही वांट्स, सपोज उसको चाहिए कि मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, तो किसी मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हो जाए, SY क्या, SY का जो ब्रेक रहेगा सर, तभी वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एटलीस्ट 1-1.5 महीने का करके लाएगा, तो ही मैं 6 सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड उसको दूंगा। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग म्हणजे यू हैव टू गो, दीज आर पार्ट टाइम, CEP इज पार्ट टाइम, फील्ड प्रोजेक्ट इज पार्ट टाइम, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम इज पार्ट टाइम, फील्ड प्रोजेक्ट इज ऑल्सो पार्ट टाइम, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग यू हैव टू गो टू जॉब। यानी जैसे आप नॉर्मल, अब वो बच्चा अगर मैं 6 सेमेस्टर में कंपनी के लिए देता हूँ, क्यों नहीं कंपनी रखेगी सर, उसको ऑडिट का नॉलेज है, उसको डायरेक्ट टैक्स रिटर्न फाइलिंग का नॉलेज है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स GST रिटर्न फाइलिंग का नॉलेज है, अगर उसने मार्केटिंग में काम कर लिया या HR में काम कर लिया, कंपनी को इससे अच्छा ट्रेन बंदा कौन चाहिए, पे पैकेज उसका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मिल गया है, और वो सारा रिपोर्ट बच्चे के पास है। अंडरस्टूड। और जब वो काम करता है ना सर, सी कॉमर्स में हम लोग इट इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल, अब जितना काम करोगे उतना सीखो, हाँ एब्सोल्युटली। So as much as they be there on the field, on the job, on the community, they are working and assisting. Yeah. We always thought, यार हम community को कैसे help कर हेल्प कर सकते हैं? सकते, हाउ डू यू गिव बैक टू द सोसाइटी। और सर लकीली अगर आप इजाज़त दे तो मैं बोलना चाहूँगा, आपने बोला मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट में भी अभी ऑलमोस्ट 40 lakhs के हिट है, मेरा सर 1 करोड़ था, मैंने क्योंकि बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थे, एंड दैट वाज लॉकडाउन पीरियड, तो फिर मैंने उसको 0 करवाया, अगेन इट वेंट टू 40 lakhs, बिकॉज उसमें 350 वीडियोज़ हैं जो कॉमर्स मैनेजमेंट रिलेटेड, ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स सब है, 350-400 टेक्स्ट बुक्स हैं, 11वीं 12वीं जो भी कॉमर्स का मेरे को जितना मिला था, क्या तो मैं उसको नहीं कर पाया, मेरे ब्लॉग्स हैं, जो कुछ अच्छा लगता है मैं उसमें डालते रहता हूँ, और रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। तो सर आपको पता रहेगा डिफेंस में ना 12वीं के बाद चले जाते हैं, और फिर उनको हायर ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन करना होता है, तो लोग इग्नू वगैरह से बीकॉम या ये सब करते हैं, फिर गूगल करते हैं। आप गूगल करोगे ना सर, आप गूगल करो, देखो मैंने गूगल को खा लिया है, पूरा फर्स्ट पेज आपको मैं ही मिलूंगा, यू ट्राई इट वंस। अमेजोन में यूल फाइंड मी, फ्लिपकार्ट में यूल फाइंड, मतलब आप पहला पूरा पेज, अब जो गूगल स्कॉलर देखे वो वहीं से मिलता है आपको सब। तो सर जब वो फ़ोन करता है, मैंने डाल दिया है कि 9, दैट्स द रीज़न मैंने बोला कि मैं 7:30, कभी रैंडम कॉल आता है कि सर मैंने ये FM देखा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ हो बंदे, तो कोई जम्मू में पोस्टेड है, कोई लद्दाख में पोस्टेड है, कोई मणिपुर में पोस्टेड है। सर जब उनको सिखाता हूँ ना, तो लगता है यार मैं वहीं बैठ के लड़ रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ये जो आपने समाज को रिटर्न दिया ना सर, और ये सब रिसर्च से आया, मेरे किसी दोस्त ने ऐसा क्रिएट नहीं किया, बट मुझे लगा कि लॉकडाउन में अगर मैं बैठा हूँ, अगर मैं, ऑफ कोर्स आज भी इन्वेस्टमेंट मेरा है सर, कितनी कंपनियां मेरे को बोल रही है कि आपके पास इतना हिट है, मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, पैसा हो चाहिए रहता तो मैं टीचिंग में रहता ही नहीं। जब उनको सिखाता हूँ ना सर, और जब वो बोलते साहब मैं पास हो गया, मजा आता है, सेटिस्फैक्शन।
सेटिस्फैक्शन। That is your real gift. रियल गिफ्ट सर, दे आर रियल हीरोज। Yeah. मुझे लगता है मैं उनके साथ जीता हूँ, जब वो वहाँ से बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसा रहता है कि जब तक मैं उनको सिखाऊंगा नहीं उनको समझेगा नहीं। मैंनी कैलकुलेशंस एंड ऑल यू रिक्वायर्ड, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यू कम टू द नेटवर्क एरिया एंड देन वी विल हैव डिस्कशन। फिर हम लोग वो संडे को सेशन रखते हैं सर। और ऐसा आर्मी डिफेंस के लिए नहीं, ऐसा बहुत सारे नीडी, हाँ, बेंगलोर से बहुत सारा मुझे कॉल आता है, बहुत सारा बिहार से तो कॉल आता है, यूपी से आता है। तो उन लोग सबको सिखाता हूँ सर। मतलब भोपाल से आता है, उन लोग ये बीएमसी टाइप का होता है ना, उसमें भी 12वीं के बाद चले गए थे, बट उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। प्रमोशन के लिए उनको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के लिए उनके पास मटेरियल है बट समझ में नहीं आ रहा है। समझने के लिए अगर गूगल करते हैं तो शायद मैं मिल जाता हूँ, तो मैंने नंबर दे रखा है और मैंने टाइमिंग दे रखा है, तो कॉल करते हैं तो मैं उनको रिवर्ट करता हूँ सर। ऐसा So it's a way of giving back to the society also. It's very important. वही And a सीखा है very सर। different way to do it also. नहीं, बट ये रिसर्च से आया सर। Yes. अगर मैं सोचता था, बहुत सारे टीचर मेरे भी टीचर ने कभी ये नहीं सोचा, Right. उन्होंने भी कभी क्रिएट नहीं किया। Right. उन्होंने भी सारे अपने जितने भी मटेरियल थे उनके सॉफ्ट कॉपी नहीं बनाए थे। Right. आई डिड Right. एंड इट क्लिक्ड। Clicked. That's more important. It clicked. But that constant quest to do it, करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, that research and the ability to keep doing things. Nice. So we talked, sir, about the students and how you are able to create a difference and आप कैसे उनकी लाइफ में चीज़ें इम्पार्ट करते हैं. What about your peers? And when I ask about peers, आपके जितने ही अफ्लुएंट है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल नॉलेज एंड हाउ वेल्थ इज़ क्रिएटेड, या वो एक सेक्शन अभी भी है जहाँ वो दे हैव नॉट बीन एबल टू इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मनी वर्क्स फॉर यू एज मच एज दे वुड बी टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आपके जो मित्र होंगे आपके साथ, गॉट इट, पियर्स। हाँ, peers. So Sir, touch wood, luckily, whatever my colleagues are there, they are not my peers. okay. And unfortunately, they are not wealthy as I am, Right. to be very upfront. Right. They also feel so. Right. Because वो जब मैं जाता हूँ बोलते 3 लाख का तो फ़ोन लेके तुम घूमते हो। हाँ. And I always change. अभी मैं ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका हूँ अच्छा. 7 का, वो आ जाएगा। So, because my peers are, I mean, as I told you, I work for Chennai. Right. यहाँ के जो ट्रस्टी थे वो मेरे दोस्त थे। Okay. ठाकुर के जो ट्रस्टी हैं, हाँ. वे उनके जो हैं मतलब, तो मैं उनसे सीखता हूँ। Okay. मैं अपने ग्रुप से, कलीग से सीखूंगा, देन आई कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। Well. ऐसे मुंबई में कम से कम 8 से 10 ट्रस्ट है। ठीक है, अभी भी फ्रेंडशिप डे का मैं मैसेज दिखाऊंगा, सबका बेस्ट विशेष है। पैसे, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, यहीं पे एक मेरा फ्रेंड रहता है जिनेश करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे साथ ही था, और वो मिठी भाई एनएम से पढ़ा था, मैंने उसको चांस दिया था। ही ऑल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ। तो वो मेरे पीयर्स होते हैं। एक मेरा फ्रेंड है, ही इज़ पराग मेहता। Okay. ओके, ही इज़ सेंडिंग स्टूडेंट अब्रॉड। Okay. ठीक है, मैं उसको असिस्ट करता हूँ। सो आई नो हाउ ही इज़ मेकिंग मनी। तो वो मेरे लिए पीयर्स हैं। आई नो, आई लर्न फ्रॉम देम Right. हाउ द मनी अट्रैक्ट्स मनी। मैंने जो आपको बताया ना सर, जो रिच करते हैं, Right. कि मैं अगर ज़िंदगी भर कमाऊँगा सर, इतना मैं लेविश लाइफ नहीं जी सकता। Right. और मैं उनको देखता हूँ, हाँ. तब मुझे में लगता है, अरे ये क्या अलग कर रहे हैं, ये नहीं मेहनत कर रहे, इनका पैसा इनके लिए मेहनत करके पैसा ला के दे रहा है। Right. जिस दिन एक इंसान ये सीख लेगा कि मेरा पैसा मेरे लिए पैसा ला के दे, देखो उसकी पूरी आई मीन नस्ल ही चेंज हो जाएगी। और मैंने देखा है सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने असिस्ट किया था व्हेन आई वाज देयर इन चेन्नई कॉलेज एंड ऑल। दे वेंट फॉर स्टडी अब्रॉड, और
वहाँ क्योंकि वहाँ का मनी मल्टीप्लाई होता है, जैसे वो यूएस में डॉलर में कमा के लाया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ उसका वैल्यू मतलब अभी जैसे आज 87 है, जो भी कर लो मतलब, या पाउंड में लाया तो 100 है ना ऐसा। तो ये चीज़ मैं उनको सिखा के भेजा था, बेटा तुम आ जाओगे तो सर एक चौल में रहने वाला बंदा आज 3 फ्लैट का मालिक बन चुका है। उसने पूरे खानदान का, पूरे नस्ल को चेंज कर डाला सर, एक बच्चे के मेहनत में। राइट। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड हाउ यू लर्न फ्रॉम पीयर। सो मेरी लर्निंग पीयर टू पीयर वहाँ से आती है सर। सो आपके जो कॉलीग्स हैं उनके साथ आप उनको पुश करते हैं कि आप और इन्वेस्ट करिए? सर देखो, हम घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, पानी उनको नहीं समझता है सर ये चीज़ें। अवेयरनेस अभी भी नहीं है। हाँ, मतलब इंडियंस में वही बोला ना, इसलिए तो इंडियाज 95% वेल्थ इज विथ 5% पॉपुलेशन एंड रिमेनिंग 95 पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 5%। अब देखो ये सच्चाई है, हर कोई बड़े कंपनी के अंडर में ही काम कर रहा है, और वो 5% मतलब समझो सर बहुत बड़ा फिगर हो जाता है, उसमें सब आ जाते हैं। राइट। इंडिया का पॉपुलेशन छोटा मोटा नहीं, वर्ल्ड में हम लोग टॉप पे हैं सर आज। हाँ डेफिनेटली। तो उसमें सब आ जाएंगे, सारे अमीर आ जाते हैं, और वही सारे मिडिल क्लास या फिर सारे गरीब को अपने अंडर में काम पे रखे। ये सच्चाई है सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं कल बच्चों को भी बोलता हूँ उनको समझ में आता है सर सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। राइट। तो जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं होगा, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसमें काबिलियत है। जब वो सोच बदलेगी सर, जब वो, तो आज तक हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया भी डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकता है, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, कभी सोचा ही नहीं हमने सर। हमने अपने आप को ऑलवेज डेवलपिंग, अंडररेटेड, हमने तो अपनी जिंदगी उसी में निकाल दी। बट अच्छा लग रहा है जाते जाते ये देखते हुए अभी तो भारत, हाँ नहीं सर, बट ठीक है, बट हमने तो अपनी आधी लाइफ तो जी ली ना सर। यस डेफिनेटली। और बहुत क्रिएट किया सर। आई मीन अगर मैं बताऊं, ये रिसर्च का मैं आपको अपडेट देता हूं सर। 2003-04 में मैं जब चेन्नई में था तभी कोर्स आई बैफ करके, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसके बारे में अपन बात करें, और तभी मैंने बोला था सर, मैं रिसर्चर का एक माइंडसेट होता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है। आप जैसे बोले, कैसे आपने प्रिडिक्ट किया कि मदर इज ऑल्सो इन मार्केटिंग, तो अभी मेरे को ध्यान में रहेगा, एग्जाम्पल में लेने वाला हूँ वो चीज़ बच्चों के लिए। तो तभी मैंने बोला था कि, और मैंने उसका ही स्टार्टिंग से रखा। मैं एडिट जॉब में था सर, मैं छोड़ दिया एडिट जॉब, ओके, आई क्विट। तो सर तभी भी मैंने बोला था कि एक ना एक दिन ये कोर्स सबको सुपरसीड करेगी, और आज सर उसको करीब 21 साल हो गए, 21 साल लगा, लेकिन वो बदलाव आ गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज इन बैफ इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सर अगर मैं मरूंगा तो बीकॉम एनीथिंग, यस सर, आई विल गिव यू द डेटा। सर मैं मरूंगा तो यही सब तो देके जाऊंगा समाज को, और क्या देके जा सकता हूँ सर। सर मैं जब बचपन में पढ़ाता था, आई मीन 97-98 में, तभी सबको बोला था, तभी ATM इतना पॉपुलर नहीं था, और एक एक दिन पता रहेगा, अगर आपने भी पता नहीं कि एक 7-8 years, हाँ, तो एक अपने खुद के पैसे को निकालने के लिए एक पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। ओके, टोकन लिया, ये किया, मतलब बैंक से पैसा निकालना, ये वाज अ बिग वर्क टास्क एट दैट टाइम, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, मैंने बोला था बेटा देखना, एक दिन ये सारे झंझट दूर हो जाएंगे। जब ATM मशीन आया ना, आई वॉज सो प्राउड। उसने इन्वेंट किया था, उसने बोला कि आई गॉट इंस्पायर्ड विथ इंडियन मनी लेंडर। व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ इंडियन मनी लेंडर सर? आके बिठाएगा, एनी टाइम मनी, रात के 2 बजे आओ, पैसा लेके जाओ। ओके, अच्छा, आई डिडंट नो दिस, इंटरेस्टिंग। सो अगर इंडियन मनी लेंडर रात के 12-2-3 बजे पैसा दे सकता है, तो मैं बैंक होके क्यों नहीं दे सकता? राइट, लेट्स इन्वेंट ATM, एनी टाइम मशीन, गेट योर कैश, व्हाट्स द हार्म ऑन इट? और मैं आज आपको वापस बता दे रहा हूं सर, बैंकिंग रहेगा, बैंक्स नहीं रहेंगे। अच्छा, आपने देखा
कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, राइट 10 के 4 हो गए, 4 के 1 भी नहीं बचेंगे सर आपको। ओह बैंकिंग रहेगा लेकिन बैंक्स नहीं रहेंगे सर। आज आपने देखा रहेगा कोई भी ऑटो पकड़ने के लिए तभी हम लोग जाते थे चौक चौराहे पे ऑटो लेना है, आज नहीं है वो सिस्टम। तभी हम थिएटर जाते थे मारामारी करके टिकट कटाते थे, आज सिस्टम निकल गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता सर। And this we have all predicted. That's the reason we feel very proud. हम इससे अपने आप को बाबा बंगाली नहीं समझते, बट हमको लगता है यार हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और ये सर सब तब होता है, आज मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का सर, जो 1917 में इस्टेब्लिश हुई। उसके महाराष्ट्र का सर, ये छोटी बड़ी बात नहीं है, 105 कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें सब बड़े बड़े लोग उसके मेंबर हैं। मनमोहन सिंह ले लो, मोन्टेक सिंह आलूवालिया ले लियो, मोहम्मद यूनुस ले लो, सबको मैंने सामने से डिलीवर लेक्चर करते हुए, जितने भी आरबीआई के गवर्नर, रंगाराजन ले लो, सबको मैंने सुना है सर। इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन का आज मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन का मैं थाने चैप्टर का सेक्रेटरी हूँ। महाराष्ट्र कॉमर्स एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जब ऐसे फॉरम में जाते हैं सर, तो आपको आई मीन यू लर्न अ लॉट। यस, एक्सपोजर। और मैं सर उस टाइम से जा रहा हूँ 2004 से, जब भी पूरे कॉन्फ्रेंस में 4 या 5 बंदे आते थे, अभी तो बहुत आते हैं। तब से सीखना, लर्निंग जो आपने बोला, लर्नर, आपको ये शब्द बहुत प्रभावित करी, राइट? यू लर्न, यू हैव, या यू लाइक दैट वर्ड लर्नर, बट यूजीसी ने इसको कंपलसरी किया है। नाउ स्टूडेंट विल नेवर बी कॉल्ड एज अ स्टूडेंट, दे विल बी कॉल्ड एज अ लर्नर। Subject will not be called as a subject. Subject will called as a course. Okay. Course will not called as a course. It will be called as a program. Okay. This is all transformation is there in NEP, and it is very good. It is good. Yes. Who will not like, sir, 16 years schooling? Who will not like, sir, the learning with earning? Who will not like, sir, practical learning? Agree. Everybody will be happy. Agree. And not on the top of it, sir, we have a subject nowadays is IKS, Indian Knowledge System. Okay. How the India's knowledge, we are creating now. We are about to create. Okay. Earth's taxation at Maurya dynasty to GST. Oh, very fascinating. How the tax structure, same it was. Right. But it was misleaded and misguided in between Right. by Britishers and others. Right. Let us learn those legacy Right. of Indian knowledge system. I am talking about the era what I am dealing with, Yeah. accounting, finance, taxation and all. People are having in Natya Shastra, Artha Shastra, Kala Shastra, what we had, Okay. and that was heritage, sir. We are talking about invention of aeroplane and all. What was the Pushpak Viman that Ravana has used? सीतारन में किस पे लेके गया था? हवाई जहाज तो तभी भी थे सर. We are talking about that dome, invented by Israel. Then we have Sudarshan hand, हाँ ना. आपने रामायण देखा था सर, वो सीरियल जब भी रामानंद सागर ने बनाया था? Had you seen that? नहीं, वो वाला नहीं देखा. If you will get a chance, please see. There वो दो एरो टकराते, फिर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर बैक ऑफ हो जाते हैं. इंडियन सिस्टम में है सर, इंडियन शास्त्रास में इट इज देयर. Right. वी हैव टू डिग आउट. That's the reason अभी जो अटैक हुआ पुलवामा वाला एंड ऑल, देन व्हाट वी रिएक्टेड ऑन, हमारा क्यों सुदर्शन इतना स्ट्रांग हुआ? Because it is there in Indian. See, education wise we were
विश्वगुरु अर्लियर ऑल्सो इन फ्यूचर ऑल्सो. आपने सुना रहेगा ऑल यूज टू कम हियर ओनली इन फॉर एजुकेशन. Nalanda and Takshila was the main. Takshashila. Yes. So why we should not, and this is were not there in the system. This was not there in curriculum. Now through NEP they are making it. So it is very good innovation. And this is all came through research. That's right. Yes. And it is required for India's development. Yeah, agree. A lot more is required. Both Yeah. sides. We have some very interesting and unique questions, थोड़े creative, and team बहुत effort डालती है इसके लिए. So, if your financial journey were a research paper, what would its title be? You create knowledge for creating, you learn knowledge for creating wealth. Wealth. You learn knowledge for creating wealth. This is from bottom of heart. Not, and I can write a paper on this Okay. later on. I can do the research. Because see, we always underrate or undervalue that, actually ट्रू स्पीकिंग. अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम से वापस मैं चला जाऊंगा क्योंकि एज अ टीचर अभी हम लोग वहीं से थे. सो लक्ष्मी एंड सरस्वती बोथ आर टुगेदर. So, but it is wealth may come and go. Right. But if you have the knowledge, wealth can anytime come. That's the reason I give an importance, lot of importance to knowledge. Knowledge. Saraswati. Okay. Nice. So as much as you will knowledgeable, that much wealth you can create, sir. Definitely. So I mean, जो finance and all, आपने बोला आपकी mother was a best finance manager. She has made you And learning. all our mothers. All mothers. All And you have taken her as a role model. Role model, yeah. And it was very good example. Yeah. Okay. So same way, if every people will try to understand. Right. Few examples what I have quoted just now. Indian knowledge system, or what was the history of India's legacy, Right. what we had. And it is not myth, it is not any hypothetical thing. This is all reality. We have gone through, there are a lot of evidences. Right. Aj Mahabharata, because recently I got a opportunity to be there at Kurukshetra. Oh. Indian Economic Association का सर last conference was at Kurukshetra University. I have seen literally how those that Abhimanyu ka this Chakravyuh has been, that entire structure is there in that place. How we can say it was a hypothetical thing? It was fact, sir. The tree is still there, where the Gita Gyan has been given to Arjuna. Those 5 villages still there. Only the nomenclature got changed, Yeah. which Pandav was asking for. Right. So how we can tell this? It's I had been to Sri Lanka also, sir, Yeah. and I found those all things were there till today. So these were not hypotheses, sir, and not hypothetical. fiction. It was not fiction. It is a fact. Reality. Only over a period of time वो चेंज होता है. चेंज हो गया है थोड़ा, बट है सारे एविडेंसेस हैं. Right. आज भी नासिक में इफ you'll go, you'll find lot many evidences of Ramayana and Mahabharata. True. Panchgani also, if you'll go, you'll visit, you'll find. So it's there. So sorry, come again. What was the question? What would be the title of your book be? So if you will learn, you will create wealth. That is was the I have already given. There Yes. was another question which No, we the have put second was if you, so you've published hundreds of papers. If you had to write one just on money lessons life taught you, what would be your abstract? paper. Yes. One just on money life, money lessons life. अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, पैसे से पैसा बनाओ, हेल्दी दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ. Yes.
आपने देखा रहेगा एंटायर कन्वर्सेशन माय एरिया ऑफ बैटिंग वाज इन दिस 5 diameter ओनली इन Yes. दिस 5 area I was playing. Yeah. So if any person has these thing integrated, inbuilt in them, Right. success will be there in their feet. Nice. And sir, for we can say that कि मंजिलें चाहे कितनी ऊंची भी हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं. So that will be there in your feet. You will achieve all your goals. Goals. But these values are very Very important, sir, which is missing somewhere, I found. Right. But we can create. If there is a good teacher, Yes. they can create. Who can impart? They can impart. They can empower the generation. They can ignite those aspects amongst their learners. Right. The next one is what's the one financial myth that you think needs to be debunked in the academic world? Can you come again with that question? What's the one financial myth that you think needs to be debunked in the financial world? कोई ऐसा एक myth रहा है समझ गए. जो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो myth ही है, मतलब खाली लोग समझते बट ये सही नहीं है. वही जो where we started, the journey, difference between rich and poor. Poor. They never give the value of their money. Right. Actually, time value of money is very important. Let us talk about in financial term. Right. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. राइट टाइम पे अगर आपने राइट इन्वेस्टमेंट नहीं करे या राइट यूटिलिटी नहीं करा मनी का, दैट मनी विल हैव वैल्यूलेस. Yeah. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर. अभी मैं पूरा फाइनेंस नहीं सिखा सकता हूँ सर आपको, Right. बट द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, Right. they can really create wealth. If they don't have time value of money, अभी आज I think your profile is planner. Yeah. I used Advisor. to teach advisor. मैं certified financial planner advisor को CFP को पढ़ाता था. हाँ. And I used to teach them the time value of money. You make a financial plan, what is your financial goals, Right. and how you were investing, where you will invest so that those goals can be achieved. So how you can create your wealth by, investing in different avenues so that your money should give proper return and reward. Right. Sir, today's generation is very sharp. Right. They know I want to create my own. It might come from some, kind of movie or whatever the aid, I don't know. But they want to create, like how you have created your own company Right. with your partner. So everybody is having that skill. Yeah. I want to create my own. Create something, which is very important. Very important. And कुछ for that, बनाना, कुछ build करने में yes, ज़्यादा for मजा- that वो तब मेहनत करना चालू करता है. True. और अगर वो मेहनत करेगा तो सर कायनात बोलते हैं ना, वो शाहरुख का डायलॉग, हाँ. वो तो जुट जाती है तुम्हें वो चीज़ आपके दिलाने पास में. आएगी. True. उसको कोई नहीं रोक सकता सर. Last 2 questions. जी सर. One is आप हमारे नेक्स्ट गेस्ट को क्या पूछना चाहोगे एज अ क्वेश्चन आपकी तरफ से? मैं हाँ. गेस्ट कौन आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं, कोई भी हो, irrespective. What is the question you would like to ask our next guest? how they want to do certain social reform which will going to help the society at large, Large. or Bharat or India at large. Okay. And one final very interesting, which I am very excited. You have inspired so many students, but can you tell us one student who left a lasting impact on you? आपके ऊपर बहुत प्रभावशाली रहा वो बच्चा. मैं नहीं भूल सकता सर. देयर वाज वन गाय, अर्पण गांधी करके, Okay. मिडिल ईस्ट से आया था. हाँ. And in Middle East, college education, I'm talking about 2009 somewhere. I don't know today's position. Till today also we get the learner from them. So the university education was not good. So वो नाना जी के पास रहता था, बहुत बूढ़े थे. And
फ्रॉम देयर लिविंग एंटायर फैमिली ही केम हियर. उसके लिए माँ बाप मैं था. Okay. From UAE. UAE, Okay. दुबई और समवेयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली. दुबई था या अबू धाबी, आई फील दुबई. अभी दुबई में सेटल है वो. Okay. तो आई स्टार्टेड टीचिंग प्रीचिंग. वो मेरे से बहुत इंस्पायर हुआ एंड आई ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड. मेरा पहला वेबसाइट उसने बनाया था. Okay. And then since 2009 started, as I told you, I started teaching CFP, CFA, because Indian all education I taught, CA, CSI with, I started teaching in 2009 onwards, CIMA, UK based, CFP, USA based, CFA, इन लोगों को पढ़ाना चालू किया. And I used to take his extra, because he was also, I mean, finding my company. So, and I used to take his financial advice and all. मैं बोला ना उसने भी create किया था, because he used to invest and all. And finally he has cleared with flying colors in my college. Then he has completed his CFA. और सर जब वो UAE में गया ना, पूरे UAE में वो पहला CFA था. और वहाँ उसको ऑनर, मतलब पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात में ही वॉज द फर्स्ट CFA होल्डर. आज तक वो मेरे से जुड़ा हुआ है. उसने अपने छोटे भाई को यहाँ भेजा. ही वॉज नॉट उतना सक्सेस, वो CFP करके गया. उसके छोटे भाई का नाम मैं भूल गया हूँ सर. अर्पण आज तक मेरे जहन में है. उसने पैसे इन्वेस्ट करने और ये वो, मैं बोलता हूँ मैं बच्चों से भी बहुत सीखता हूँ. उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू करा. SIP एंड ऑल. ही टॉट मी ऑल दोज. सर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप ऐसा करो. फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्रिएटेड माय वेबसाइट. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उसने IT का छोड़ के वो फाइनेंस में घुस गया. जब तक वो था ही यूज्ड टू मेंटेन माय वेबसाइट. दैट वाज nisisir.com. एंड लेटर ऑन आई क्रिएटेड. तो सर अगर मैं वो चीज़ तभी नहीं सीखा रहता तो शायद आज मेरी वेबसाइट इतनी पॉपुलर नहीं होती जो आज. तो मैं उसको मेरा भी गुरु मानता हूँ कभी कभी. इसलिए मैं बोलता हूँ ना सर, आई एम अ लर्नर एंड आई विल बी लर्नर फॉर एवर. दैट इज व्हाट थिंग्स. If you're still in touch, you should ask him to watch this. Yeah, of course. And many of my learner will watch. No, definitely. But Arpan, it's a tribute to him, so he should definitely watch it. Of course, I'll. But thank you so much, sir. Was wonderful. Close to 2 hours, I think. But बहुत मज़ा आया. समझा ही नहीं. My God, ये तो लेक्चर जैसा हो गया. हाँ. नहीं, बहुत मज़ा आया. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. एंड एक टीचिंग की परिभाषा चेंज हो गई. दैट वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं मिलता, वो सब जगह मिलता है. टुडे द मीडियम ऑफ टीचिंग हैज़ चेंज्ड. आज लोग पॉडकास्ट से भी सीखते हैं. सो एज मच एज आपके हमारे व्यूअर्स तो सीखेंगे ही, बट आई लर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ रीलर्निंग एंड रीआइटरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ओल्ड लर्निंग. सो वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है. बट बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. बिकॉज आपने इतना ग्रैटिट्यूड से चालू किया कि मुझे फिर ओवरवेलमिंग नहीं लगा. मुझे ऐसा लगा कि आई कैन टॉक टू यू फॉर आवर्स. नहीं तो CV देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार कैसे हम आई विल बी एबल टू नेविगेट दिस 1.5 hour, but it's now close to 2 hours. Thank you so much. Happy Teachers Day to you in advance, because थोड़ा एडवांस में हम शूट कर रहे हैं. So this is going to be live around that. And it was a privilege to spend this time, and it is an honor to know you. And this thing of researching and building things, I hope teachers like you create more and more such mindsets amongst us as young individuals, so that India can create a lot many great entrepreneurs in the coming days to come, and create a lasting impact, and take India back to being the Vishwa Guru what it was earlier, as you mentioned. So thank you so much once again, and it is a pleasure talking to you, and I will always stay in touch. थैंक यू. 2 चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा. एक तो अनुभव का निर्माण नहीं हो सकता. अनुभव, द एक्सपीरियंस व्हाट वी हैड, अनुभव का निर्माण नहीं हो सकता. इसे समय देकर ही पाया जा सकता है.
सो क्या बात एज आपने जो अभी अभिव्यक्त करी आपकी सारी राइट एक्सप्रेशन, हाँ वो अगर हम लोग शायद ये 2 घंटे नहीं बिताते तो बिताते शायद तो- हम लोग दोनों को हाँ, एक्सपीरियंस नहीं नहीं होता। होता जी और दूसरा, आज मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है, जी सर आई एम थैंकफुल टू हिम कि सारे जितने भी हैं, दोस्त किताबें रास्ते, दोस्त किताबें रास्ते और सोच यदि गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। दोस्त, किताबें रास्ते, और किताबें और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और यही सही हो तो जीवन बदल देते हैं। बहुत ही बढ़िया वेरी ट्रू With these words, special happy Teachers Day to all my teachers colleague and all my dear learner। आज मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा। मैं चाहूँगा कि आप इनके पॉडकास्ट को डेफिनेटली देखो और सीखो ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग, जैसा सर ने बताया कि लर्निंग एज अ लर्नर अगर आप हो और ज़िंदगी में सीखने के लिए इच्छुक रहोगे तो ज़िंदगी में हर एक सफलताएं आपके कदम चूमेगी। विद दिस वर्ड्स, हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन टू ऑल माय लवली टीचर्स। थैंक यू सो मच।